Assalamu alaikum. In the last session, we have seen the Pictionary of our first lesson, Exploring Space. Now, in this session, we will read the story Earth, the Desolator's Home. Earth means ज़मीन जहाँ हम जिंदगी बसर करते हैं, and desolated means तबाहशुदा यानी जिंदगी गुजारने के लायक नहीं है. We are living in the year 2020, and this lesson is about 2068. So, it is an imaginary story. The main concept is we should not pollute or damage our earth. It was the year 2068. Humans had destroyed the earth and started colonizing the red planet Mars. इंसान मार्स में जिंदगी बसर करना शुरू किए. इंडिया एस्टेब्लिश 3 कॉलोनीज यानी दुनिया भर के हर कंट्री वाले मार्स में बसना शुरू हुए, तो इसमें से इंडिया वाले भी वहां पर 3 कॉलोनीज कायम किए. Arivumadis family lived in one such colony. On her birthday, her grandfather traveled more than 1500 kilometers to meet her. अरिवमदी के बर्थडे पर उनके दादा उससे मिलने के लिए 1500 किलोमीटर दूर सफर करके वहां पहुंचे. When he reached, he saw her sleeping in her capsule. जब वो वहां पहुंचे तो वो अपने कैप्सूल में सो रही थी. कैप्सूल मीन्स एक सिलेंडर नुमा बेड. He said, "Wake up, Arivu." Arivumadi was surprised. जब वो अरिवमदी को होशियार कराते हैं तो वो बहुत हैरान हो जाती है. "Grandpa, when did you come?" आप कब आए? "I was thinking that you won't be coming for my birthday." मैं सोचती थी आप नहीं आएंगे. He sighed. Sighed means एक लंबी सांस लेना. "Don't you know about the dust storm of Mars?" क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ के तूफान के बारे में. यानी डस्ट स्टॉर्म बोले तो जिस तरह यहाँ पानी का तूफान होता है वहां धूल का तूफान. Sometimes it even lasts for a month. कभी कभी ये महीने के लिए भी लगातार होता है. But this time it did not. So I am on time. ये ना होने से मैं वक्त पर पहुंच चुका. It still took me 3 sols to reach here. Sols means मार्स का एक दिन. जैसा यहाँ का एक दिन एक रात होता है तो वैसा वहाँ के दिन को सॉल्स कहते हैं. Now come on, let's not waste time. We will go to harvest the vegetation hab for vegetables. चलो हम तरकारी काश्त के लिए जाएंगे करके वो दोनों निकलते हैं. In the hab he said, "These carrots are not tasty anymore like the ones I ate in my childhood." जिस जगह पर तरकारी काश्त करने के लिए गए वहां वो कहते हैं कि इन गाजरों का मजा मैं जब बचपन के दौर में खाया था उसके बराबर नहीं है. She asked, "Why do you say so, grandpa?" वो पूछती है क्यों आप ऐसा कह रहे हैं. Grandfather explained, "The vegetables we grow here do not taste like the ones on earth." मैं यहाँ पर जो तरकारियाँ खा रहा हूँ वो जमीन के तरकारियों के मजा के बराबर नहीं है. I really wish you had tasted the carrots from the earth. मुझे बहुत ख्वाहिश है कि तुम भी अगर जमीन के तरकारियों का मजा चखती. Ariu asked eagerly, "How did they grow the crops and vegetables on the earth?" Ariu शौक से पूछती है वो जमीन पर वो कैसे तरकारियों की काश्त करते हैं. Now the grandfather was sad, like he is missing the earth. अब grandpa बहुत अफसोस से कहते हैं. He said, "The earth had fertile soil, so the fruits and vegetables grown were healthy and tasty." जमीन पर बहुत जरखीज मिट्टी होती थी, इसलिए वहाँ के फल और तरकारियाँ बहुत मज़ेदार और सेहतमंद हुआ करती थी. She asked,
But I learned that humans used chemical fertilizers and polluted the soil. वो पूछती है, मगर मैंने तो सुना है कि इंसान केमिकल खाद इस्तेमाल करके जमीन को खराब कर चुके थे. Here we get unpolluted food and water. Is that correct? यहाँ पर हमें पाकीज़ा ग़िज़ा और पानी मिलता है. क्या ये सही है? Grandfather laughed. Already I told you, these fruits, vegetables, and water are not the same as in the earth. Grandfather हंसते कहते हैं कि मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ के फल, तरकारियाँ और पानी जमीन के बराबर नहीं है. They are not real. ये सही नहीं है. Aryu exclaimed. Even the water. पानी भी क्या? वो पूछती है. He said, of course, in Mars we get water from burning fuels. बेशक मार्स पर हम पानी गैस को जलाकर हासिल करते हैं. On the earth we used to get water from rain. It was natural and it was free. जमीन पर हमें बारिश से कुदरती तौर पर मुफ्त में पानी मिलता था. She said, Grandpa, enough for your stories about the earth. वो कहती है, बस बस बहुत कहानी मत बोलो. I know that life there was easy, but here survival is very difficult. मुझे मालूम है वहाँ जिंदगी आसान थी, मगर जीना मुश्किल है. He replied, Yes, my dear, adapting to Mars is difficult. Today we are fighting for things which we got easily. हाँ, जो चीज़ हमें आसानी से मिल रही थी, उसके लिए हम आज बहुत मुश्किल से हासिल कर रहे हैं. He continued, In the earth, you did not need a space suit or an oxygen cylinder. वो कहते हैं, ज़मीन पर हमें स्पेस सूट या ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं होती. यानी स्पेस सूट मतलब है इस तरह का लिबास जो ये तस्वीर में आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि ज़मीन पर हम जो यहाँ पर रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं वो लिबास हम खुला पर नहीं पहन सकते, क्योंकि वो वहाँ पर ज़िंदगी गुजारने के लायक नहीं होती. तो इसलिए खुला पर जाने वालों के लिए एक अलग किस्म का लिबास इस तरह का तैयार किया जाता है, और वहाँ इस लिबास में वो ख़ुद को आसानी से ज़िंदा रहने पर रह सकते हैं. और ऑक्सीजन सिलेंडर, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है. खुला पर जाने वाला हर इंसान इस तरह का सिलेंडर अपने साथ रखता है, क्योंकि खुला में बिल्कुल हवा नहीं है. ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ. इस तरह सिलेंडर अपने साथ रखने से इंसान खुला में भी आसानी से सांस ले सकता है और ज़िंदगी बसर कर सकता है. Also the years are longer here. और यहाँ के साल भी लंबे होते हैं. Aryu said, Yes, Grandpa. In Mars, 687 days make a year. Aryu कहती है, हाँ ग्रैंडपा, यहाँ मार्स में 680 पर 7 दिनों का एक साल होता है. He smiled. Ha ha. Yes, you would be 18 years old on the earth now. वो हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, अगर तुम ज़मीन पर होती तो 18 साल की होती. Grandpa thought to himself, We destroyed our home. Grandpa खुद से सोचते हैं कि हमने हमारे ज़मीन को तबाह बर्बाद कर दिया. The home that nature had offered us. वो घर जो कुदरत ने हमें बहुत आसानी से मुहैया की थी. Now we are trying to make this our home. अब हम इसको हमारा घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. Aryu looked at him and said, Aryu अपने दादा की तरफ देखती है और कहती है, Don't worry, Grandpa. The scientists are trying to terraform the Mars. आप फिक्र ना कीजिए, साइंसदान मार्स को इंसानों के ज़िंदगी के मुताबिक बना रहे हैं. यानी एक रेड प्लैनेट मार्स है, इस पर इंसानों की ज़िंदगी अब तक नहीं है या कोई जानदार यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ का माहौल इंसानों की ज़िंदगी के मुताबिक नहीं है. तो अब हमारे साइंसदान उसको थोड़ा थोड़ा बदल कर ज़मीन के बराबर बना रहे हैं और इंसानों को
जीने के मुताबिक तैयार कर रहे हैं। He said, True, but nothing can be the earth. वो कहते हैं सही है, मगर जमीन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। The earth is our home. अर्थ हमारा घर है। Let us leave this for now. Today we should celebrate. ये सब छोड़िए, अब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं।